اس کہانی کے لیکھک ہیں اے حمید، اور اس کہانی کا نام ہے پراسرار کالی بلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ڈال کے معزز ناظرین، اس کہانی کا یہ پہلا پارٹ ہے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے پہلے پارٹ کی طرف۔ یہ کہانی ایک طوفانی رات کو شروع ہوئی۔ دن کے وقت موسم اچھا بھلا تھا۔ دوپہر کے بعد آسمان پر ہلکی ہلکی دھند چھا گئی۔ ریڈیو پر بھی خبروں کے بعد موسم کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ رات کو کسی وقت چھینٹیں پڑنے کا خیال ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی خوب پڑ رہی تھی۔ میں نے شام 4 بجے کی چائے ریسٹ ہاؤس میں آتش دان کے پاس بیٹھ کر پی۔ کچھ دیر بیٹھا اخبار پڑھتا رہا، پھر سوچا کہ رات کے کھانے سے پہلے تھوڑی سی سیر کر لی جائے۔ میں نے لمبے گرم کوٹ کے اوپر برساتی پہنی، گلے میں مفرر ڈالا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ میں برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ریسٹ ہاؤس کے بوڑھے چوکیدار نے آگے بڑھ کر پوچھا، صاحب کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں بابا، میں ذرا سیر کو جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ تم ایسا کرنا کہ آج سبزی کے ساتھ چاول بنانا، آج رات میں چاول کھاؤں گا۔ بہت اچھا صاحب جی۔ میں نے بوڑھے چوکیدار عبدل کے سلام کا جواب سر ہلا کر دیا اور لمبے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریسٹ ہاؤس کے گھنے درختوں والی چھوٹی سی سڑک پر سے ہوتا ہوا پتھروں کی سیڑھیاں اترتا نیچے اس پگ ڈنڈی پر آ گیا جو ایک صاف شفاف ٹھنڈے پانی والی چھوٹی سی پہاڑی ندی کے ساتھ ساتھ چلتی آگے وادی کی طرف چلی گئی تھی۔ میں شہر کے سب سے پرانے اور مشہور عجائب گھر میں نوکر تھا۔ کئی سالوں سے نوکری کر رہا تھا، کبھی سیر و تفریح کے لیے چھٹی نہیں لی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ شہر کے شور و غل سے نکل کر کسی پہاڑ کی وادی میں زندگی کے کچھ دن سکون سے بسر کروں۔ میں نے اپنے افسر کو درخواست لکھ کر دی تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ مجھے اکتوبر کے مہینے میں 15 دن کی چھٹی مل سکتی ہے۔ اکتوبر کا مہینہ پہاڑوں پر گزارنے کے لیے اچھا مہینہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان دنوں میں پہاڑوں پر نہ تو موسم بہار کے پھول کھلے ہوتے ہیں اور نہ ہی موسم سرما کی برف گرتی ہے۔ بس یوں ہی بیکار سی خشک راتوں کو تیز برفیلی ہوائیں چلتی ہیں، کبھی کبھی اولے بھی پڑ جاتے ہیں اور بارش بھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ میری چھٹی ماری جا رہی تھی، اس لیے میں نے حامی بھر لی کہ مجھے اکتوبر کی چھٹی ہی منظور ہے۔ میرے افسر نے اتنی مہربانی کی کہ اپنی واقفیت سے مجھے پہاڑ پر ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کے لیے جگہ لے دی۔ چنانچہ میں نے ایک روز بوریا بسترا اٹھایا اور پہلے ریل کار اور پھر بس میں سفر کرتے ہوئے اس پہاڑی ریسٹ ہاؤس میں آ کر ایک کمرے میں ڈیرا لگا لیا۔ اکتوبر کے خشک اور سرد موسم میں پہاڑ ویران اور سنسان تھا۔ شائیں شائیں کرتی ہوائیں چلتی تو درختوں پر سے سوکھے پتے گرنے لگتے۔ اس موسم میں پہاڑوں پر درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ پہاڑ پر بڑی سخت سردی تھی، مگر میں بڑا خوش تھا کہ شہر کی چیخو پکار اور شور شرابے سے تو کچھ دنوں کے لیے پیچھا چھوٹا۔ اپنا مزے سے ریسٹ ہاؤس میں آرام کریں گے، کتابیں پڑھیں گے اور 15 دنوں کے بعد تازہ دم ہو کر واپس چل دیں گے۔ ندی آگے جا کر وادی میں داخل ہو گئی۔ میں نے ندی کو چھوڑ دیا اور بائیں طرف ایک چھوٹے سے پہاڑی راستے پر سیر کرتا خوبانیوں کے درختوں میں آ گیا۔ درختوں کے پتے گر رہے تھے، کٹی ٹہنیاں بغیر پتوں کے تھی، پتھروں پر جگہ جگہ خشک پتے ہلکی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں لمبے گرم کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے چلا جا رہا تھا، اس لیے بھی کہ ایک عرصہ شہر کی گھٹن میں زندگی بسر کرنے کے بعد وہاں سے کھلی فضا میں نکل کر آ گیا تھا۔ خوبانی کے درختوں سے نکلا تو سامنے ڈھلان آ گئی۔ یہاں ایک جانب گوروں کا پرانا قبرستان تھا۔ قبریں بہت پرانی تھی، ان کے پتھر گرے ہوئے تھے، بعض قبریں زمین کے اندر دس چکی تھی۔ ایک کتبے پر 1740 کا سن درج تھا، گویا یہ غدر کے بعد کی قبریں تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل گہرے ہو رہے تھے۔ دل نے کہا کہ واپس چلنا چاہیے، اگر بارش آ گئی تو واپسی میں بڑی دقت ہوگی، مگر سیر و سیاحت کا شوق آگے ہی آگے لیے جا رہا تھا۔ ایک جگہ پہاڑی کے پہلو میں اخروٹ کے اونچے اونچے درختوں کے بیچ میں مجھے ایک پرانی عمارت دکھائی دی۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوئی بے آباد کوٹھی ہے جس کے برآمدے کا فرش اکھڑا ہوا ہے۔ ڈھلائی چھتوں کی سیس جگہ جگہ سے گر چکی تھی، دیواروں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھی جن میں فاختاؤں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ جانے کیوں اس عمارت میں مجھے دہشت سی محسوس ہوئی، پھر بھی دل میں ایک خواہش ابھری کہ اس کوٹھی کے اندر چل کر دیکھا جائے۔ اس کے دروازے کا ایک پٹ اکھڑ کر فرش پر گرا ہوا تھا،
दूसरा पट जरा टेढ़ा हो चुका था। अंदर एक तारीख सा रास्ता नजर आ रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि अंदर जाऊं कि ना जाऊं। इतने में बादलों में गरज पैदा हुई और एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं कोठी के बरामदे में आ गया। बारिश का पानी दरख्तों से परनाले की तरह गिर रहा था। मैं बरामदे के उखड़े हुए फर्श पर एक तरफ सतून के साथ लगकर खड़ा हो गया। यही फैसला किया कि जरा बारिश थमे तो यहां से निकलकर चलूं। अब मुझ में इतना हौसला नहीं था कि वीरान कोठी के अंदर जाऊं। खुदा जाने ये किस जमाने की कोठी थी, किन लोगों की थी, वो कौन लोग थे जो यहाँ कभी रहा करते थे, और अब खुदा जाने वो लोग कहाँ चले गए थे। काली घटा छा जाने से अंधेरा सा हो गया था। तेज हवा सीटियां बजाती चलने लगी। अब मैं सचमुच पछताने लगा कि इस खराब मौसम में क्यों खामखा सैर को निकल खड़ा हुआ, क्योंकि बारिश का जोर कुछ इस किस्म का था कि ऐसा लगता था कि कम से कम आज ये बारिश रुकने वाली नहीं है। मैं पत्थर के एक शिकस्ता बेंच पर बैठ गया, जिसका आधा हिस्सा एक तरफ को झुका हुआ था। सर्दी बढ़ गई थी। मैं गर्म ओवरकोट में सिमट कर बैठा था और अपने आप को इस मौसम में रेस्ट हाउस से निकलने पर कोस रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे पथरीले फर्श पर किसी के पांव की चाप सुनाई दी। मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से पलटकर पीछे देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। पुरानी कोठी का आधा दरवाजा इसी तरह खुला था और अंदर अंधेरे से ठंडी हवा आ रही थी। मैं वहां से उठकर दूसरी तरफ हो गया और बरामदे के किनारे पर एक सतून के पास फर्श पर बैठ गया। एक बार तो ख्याल आया कि बारिश में ही वहां से भाग जाऊं। फिर यह कहकर दिल को हौसला दिया कि आखिर मर्द हो, इतना भी नहीं डरना चाहिए। बारिश जरा रुकेगी तो चल देंगे। लेकिन बारिश तो कह रही थी कि आज मैं नहीं रुकूंगी। मैंने घड़ी देखी। शाम के 5 बजने वाले थे। अब काले बादल आसमान से उतरकर दरख्तों में आ गए थे और धुआं बनकर पुरानी कोठी के इर्द गिर्द छाना शुरू हो गए थे। सर्दी से मेरे दांत बजने लगे। बरामदे में बारिश की बौछार भी आने लगी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया और पीछे दीवार के साथ लगकर दाएं बाएं तकने लगा, क्योंकि मुझे इस बारिश के शोर में भी एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी, मगर वहां कोई भी नहीं था। शायद ये मेरा खौफ था जो मुझे तरह तरह की आवाजें सुना रहा था। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं तड़प उठा और मेरे मुंह से चीख निकल गई। बादल जोर से गिर जा। मैंने भागने के लिए पांव उठाना चाहा, मगर मेरा पांव मन मन का भारी हो गया था। मैं कोशिश के बावजूद अपनी जगह से पांव ना हिला सका। खौफ से मेरा हल खुश्क हो गया, क्योंकि मैं अपने कंधे पर किसी के हाथ का बोझ अभी तक महसूस कर रहा था। फिर किसी की आवाज सुनाई दी। मुझसे डरो नहीं। आवाज किसी मर्द की थी और बूढ़ी थी। मैंने पीछे गर्दन करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। मेरी गर्दन भी जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मैं दहशत से कांपने लगा। अब वो शख्स एकदम से मेरे सामने आ गया। मैं सहम कर दीवार के साथ जा लगा और गिरते गिरते बचा। ये एक बूढ़ा था, जिसकी सफेद दाढ़ी और सर के बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे। वो एक फटे हुए गर्म कंबल में लिपटा था और अपनी लाल लाल चमकीली आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने महसूस किया कि इसकी आंखों में मोहब्बत और हमदर्दी की चमक है। मुझसे डरो नहीं बेटा, मैं भूत प्रेत नहीं हूं, तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरा हल्क अभी तक खुश था और खौफ की वजह से आवाज नहीं निकल रही थी। इस बूढ़े ने मेरा ठंडा हाथ अपने सर्द हाथ में पकड़ लिया। इसकी उंगलियों की हड्डियां मेरी हथेली में चुभ रही थी। मेरे साथ आओ, यह कहकर वो मुझे लेकर कोठी के अध खुले दरवाजे के अंधेरे में ले गया। मैं गोया इसके जादू में जकड़ा हुआ था और अपने आप इसके साथ चल रहा था। तुम्हें सर्दी लग रही है, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा। मैं बर्फ के ठंडे बुत की तरह इसके साथ चल रहा था। वो मुझे लेकर कोठी के बड़े कमरे में आ गया। कमरे की छत ऊंची थी। दीवारों का पलस्तर जगह जगह से उखड़ रहा था। एक बड़े आतिशदान में आग रोशन थी। लकड़ी के बड़े बड़े लठ जल रहे थे। फिजा में हल्की हल्की गर्माइश थी। आतिशदान के पास ही खुली खिड़की के साथ 2 पुराने सोफे पड़े थे। बीच में एक गोल तपाई रखी थी। फर्श पर पुराना कालीन बिछा था, जिसकी हालत बड़ी खस्ता हो रही थी। बड़ा पुरस्कार माहौल था। आतिशदार के कांस पर लकड़ी की एक गिर्द आलू संदूकची पड़ी थी, जिसके ऊपर एक स्याह बिल्ली बैठी
अपनी जर्द आंखों से मुझे घूर रही थी। दहशत से मेरा खून खुश्क हो गया। बूढ़े ने सोफे पर मुझे बिठाते हुए कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब मैंने हौसला करके अपना गला तर किया और बड़ी कोशिश के बाद आवाज निकाली। मेरी आवाज कांप रही थी और मैं भी इसे नहीं पहचान सका। मैंने कहा, आप है कौन? इससे आगे मेरी आवाज ने मेरा साथ ना दिया। बूढ़े ने आतिशदान में लकड़ी का एक टुकड़ा डालते हुए कहा, मैं समझ गया हूं तुमने मुझसे क्या सवाल पूछा है, लेकिन तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं और यहाँ क्या कर रहा हूं। फिर इसने सोफे पर से उठकर कार्नस पर पड़ी संदूकची के ऊपर बैठी काली बिल्ली को हाथ से इशारा किया। बिल्ली ने बड़ी भयानक म्याऊ की आवाज निकाली और उछलकर कार्नस से छलांग लगाकर नीचे गिरी और किसी बच्चे के रोने की आवाज निकालकर कमरे से बाहर निकल गई। इसकी आवाज बड़ी डरा देने वाली थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बिल्ली चली गई तो बूढ़े ने फूंक मारकर संदूकची पर जमी हुई गिर्द को साफ किया और इसे बड़ी एहतियात से उठाकर मेरे सामने वाली तपाई पर रख दिया। फिर वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखने लगा। इसकी आंखों में मकानातीस की कशिश थी। जानते हो इसमें क्या है? इसने थोड़ा सा मेरी तरफ झुककर भारी आवाज में पूछा। इसकी आवाज में मुझे ऐसी खड़खड़ाहट महसूस हुई जैसे इसका गला बैठा हुआ है। मैंने सर के इशारे से कहा, नहीं। पुरस्कार बूढ़ा पीछे हट गया और मेरे चेहरे पर से नजरें हटाकर संदूकची की तरफ देखने लगा। यह संदूकची कोई 1 मिनट चौड़ी और 4-5 इंच ऊंची थी। इसके गिर्द पुराने सब्ज रंग के मखमल का गिलाफ पड़ा था और एक सुनहरी जंजीर इसके ऊपर लिपटी थी। इस जंजीर के सिरे पर एक छल्ला था जो खुला था और जिसका साइज एक इंसान की कलाई जितना था। खौफनाक बूढ़ा कुछ देर तक टकटकी बांधे संदूकची को देखता रहा। फिर एक गहरा सांस भरकर मेरे चेहरे पर अपनी मकानातीसी नजरें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि इस संदूकची में क्या है। मैं तुम्हें यह भी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और इस वीरान आसेबी मकान में क्या करता हूं। मैं तुम्हें एक जरूरी काम के लिए लाया हूं। यह कहकर वो फिर खामोश हुआ और आतिशदान में उठते शोलों को तकने लगा। मैंने दिल में कहा कि तुम मुझे इसलिए लाए हो कि मुझ पर जादू करके मुझे आग में फेंक दो और फिर मुझे भून कर खा जाओ। आतिशदान में जलती हुई आग की वजह से कमरा गर्म हो गया था। इसके बावजूद मुझे सर्दी लग रही थी। शायद ये खौफ ही था जिसने मेरी रगों में खून मुजम्मद कर दिया था। मैं चाहता था कि इसने मेरे साथ जो सलूक भी करना है जल्दी से कर ले और मेरी जान छोड़े। अगर मेरी किस्मत में मौत ही लिखी है तो फिर मुझे जल्दी से आग में डाल दे ताकि मैं इस खौफ से निजात हासिल करूं जिसने मेरी रगों में खून को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया है। अब वो पुरस्कार बूढ़ा अपने आप बोलने लगा जैसे वो ख्वाब में किसी से बातें कर रहा हो। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। इसकी निगाहें आतिशदान की आग में जमी हुई थी। बाहर बादल गरज कर खामोश हो गया। वीरान कोठी के किसी कमरे में से बिल्ली के रोने की आवाज आई और फिर गहरी खामोशी छा गई। बूढ़ा कह रहा था, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। फिर लौटकर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मेरे दिल पर एक भारी बोझ है, इस संदूकची के राज का बोझ। चाहता हूं कि ये बोझ किसी के सुपर्द कर दूं, फिर आसानी से मर सकूंगा और मेरी रूह वापस इस दुनिया में आकर भटकेगी नहीं। इसकी बातें सुनकर मुझे हौसला हुआ कि ये इंसान है और इससे डरने की जरूरत नहीं। मैंने पूरी कोशिश करके अपनी ताकत को जमा किया और कहा, इस संदूकची में क्या है? पुरस्कार बूढ़े ने पहली बार मुझे बोलता सुना तो मेरी तरफ देखकर अपना हाथ उठाकर संदूकची पर रखा, फिर अपनी खुरदरी बूढ़ी उंगलियां इसके सब्ज मखमल पर फेरते हुए बोला, इस संदूकची में क्या है ये तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। जब मैं चला जाऊंगा तो ये संदूकची तुम्हें खुद बता देगी। अपना दाया हाथ आगे करो। मैं नहीं चाहता था कि अपना हाथ इसकी तरफ करूं, मगर इसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मैंने बेख्तियार होकर अपना दाया हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने मेरा हाथ अपने ठंडे हड्डियों भरे हाथ में ले लिया। फिर संदूकची के साथ बंधी हुई जंजीर का खुला छल्ला मेरी कलाई में डालकर इसे बंद कर दिया। अब वो संदूकची एक जंजीर के साथ मेरे हाथ से बंध गई थी। गोया अगर मैं चाहता भी तो संदूकची को अपने हाथ से अलग नहीं कर सकता था। पुरस्कार बूढ़े ने इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया
اور सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। इसने खिड़की का एक पट खोल दिया। बारिश की आवाज अंदर आने लगी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है। मैंने खिड़की में से बाहर देखा। बादलों से भरे हुए आसमान पर बिजली चमकी। एक कड़ाका हुआ और इसकी कड़क बादलों की गरज बनकर वादी में देर तक गूंजती रही। वीरान कोठी के किसी कमरे से काली बिल्ली की भयानक चीख उभरी और फिजा को और ज्यादा डरावना बनाकर डूब गई। मेरे जिस्म के रोए कांटे बनकर खड़े हो गए थे। मैंने पुरस्कार बूढ़े की तरफ देखा। वो बड़े इत्मीनान से खिड़की के पास खड़ा खुले पट में से बाहर देख रहा था। तेज हवाएं इसके उलझे हुए बाल लहरा रही थी। बिल्ली की भयानक चीख ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं वहां से भाग जाना चाहता था। मेरा हाथ संदूकची के साथ बंधा हुआ था, मगर संदूकची छोटी थी और मैं इसे साथ लेकर भाग सकता था। मैंने सोफे पर से खिसकना शुरू कर दिया। ठीक इसी वक्त बूढ़े ने पलटकर मेरी तरफ देखा। भागने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूं। मेरा बोझ हल्का हो गया है और इसके साथ ही मेरा वक्त आ गया है। अब ना मुझे तुम रोक सकते हो और ना ही ये तूफानी बारिशें रोक सकती हैं। खुदा हाफिज। इतना कहकर बूढ़ा आतिशदान के पास खुली खिड़की में से गुजरकर बाहर बारिश के तूफान में निकल गया। इसके जाते ही बिल्ली ने एक डरावनी आवाज निकाली और खिड़की में से बाहर छलांग लगा दी। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की में से बाहर देखा। बाहर बादलों की धुंध के सिवा और कुछ भी नहीं था। संदूकची जंजीर के साथ बंदी मेरे बाएं हाथ में थी। इसका वजन ज्यादा नहीं था। इस खाली खाली वीरान कमरे से मुझे डर आने लगा था। मैंने संदूकची बगल में दबाई और बाहर बरामदे में आ गया। बारिश का जोर टूट चुका था। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। बादलों की धुंध चारों तरफ दरख्तों में फैली हुई थी। शाम हो चुकी थी। अंधेरा वादी की पहाड़ियों और दरख्तों में फैल रहा था। दूर एक देहाती मकान से धुएं की पतली सी लकीर उठ रही थी। मैं वापस रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गया। बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में सैलाब आ गया था और इसका पानी किनारों से उछल उछल कर बड़ी तेजी से बह रहा था। हल्की बारिश और सर्दी में तेज तेज चलता मैं रेस्ट हाउस पहुंच गया। चौकीदार ने ताज्जुब से पूछा, आप तो भीग गए बाबूजी, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। मैंने रेस्ट हाउस में आकर पहला काम ये किया कि कपड़े बदले, गर्म स्वेटर और मफलर ओढ़कर सर पर ऊनी टोपी पहनी, आतिशदान में आग जलाई और कंबल लेकर आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। चौकीदार चाय बनाकर ले आया। गरम गरम चाय ने मुझे बड़ा सुकून दिया। मैं फिर से अपने होशो आवाज में आ गया। ब्रीफ केस किस्म की संदूकची अभी तक मेरी कलाई में बंधी थी। चौकीदार ने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी लाइए, इसे मैं मेज पर रख देता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं अब्दुल, मुझे इसकी जरूरत है, तुम जाकर आराम करो। साहब, खाना किस वक्त खाएंगे? ऐसा करो, तुम कुछ स्लाइस और उबला हुआ गोश्त यहाँ रख दो और चले जाओ। आज मुझे ज्यादा भूख नहीं है। मगर बाबूजी, आपने तो बड़े शौक से चावल पकवाए थे। मुझे याद आ गया कि मैंने तो अब्दुल को खास तौर पर कहा था कि आज मेरे लिए चावल पकाए। मगर मैं इसे जल्द से जल्द रुखसत करके संदूकची खोलकर मालूम करना चाहता था कि इसमें क्या राज है। मैंने कहा, हाँ मैंने कहा था, मगर अब मुझे भूख नहीं है, चावल तुम खा लेना। अच्छा, अब तुम जाकर आराम करो। बस 2-4 स्लाइस और उबला हुआ थोड़ा सा गोश्त यहाँ रख दो। अब्दुल चला गया। इसके जाते ही मैंने कलाई के साथ बंधी हथकड़ी को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। छल्ले में ताला लगा हुआ था। ताला बड़ा छोटा सा था। मैंने एक सिलाई की मदद से ताला खोल दिया। छल्ले को हाथ से निकालकर मैंने संदूकची के ताले को भी सिलाई से खोला। इसका ढकना उठाते हुए मेरा दिल धड़क रहा था कि ना जाने अंदर से क्या निकले। यह था इस कहानी पुरस्कार काली बिल्ली का पहला पार्ट। संदूकची में क्या निकला, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए, जो कि इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। इस नावल पुरस्कार काली बिल्ली के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।